شگفتہ بیگم نے ان دونوں کا گھر میں تعارف کرا دیا تھا۔ گھر میں دو نئے کام کرنے والوں کا اضافہ ہو گیا تھا، تبھی کسی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ دونوں ہی ان کے سی میں شفٹ ہو گئی تھیں، وہاں پر ان کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ شگفتہ بیگم ان کے لیے کسی فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی ان کی اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کڑے وقت میں اگر وہ ان کی مدد نہیں کرتی تو نہ جانے وہ دونوں کہاں خوار ہو رہی ہوتی۔ وہ 2 دن بعد گھر آیا تھا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ تمام مرد حضرات ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ چونکہ ڈائننگ ٹیبل سے ہال روم صاف نظر آتا تھا، تبھی اس کی آمد سے سبھی باخبر ہو گئے تھے۔ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اس نے اپنے کمرے کا رخ کرنا چاہا کہ ماں کے ٹوکنے پر رک گیا۔ اس وقت اسے نیند کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بدن ناخواستہ رک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، انہوں نے پیار سے کہا تو خلاف توقع وہ چپ چاپ ان کا حکم مانتے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ چیئر کھینچ کر وہ بہت ٹائم بعد اپنی مخصوص جگہ عین دادا جان کی چیئر کے برابر میں ہی بیٹھا تھا کہ راحت سب ایک جھٹکے سے چیئر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، جس کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے، اور پھر لبوں پر آپ ہی آپ دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ بہت سے لوگوں کا اس کا یہاں بیٹھنا ناگوار گزرا، اور اس میں سرِ فہرست اس کا اپنا باپ تھا۔ دادا جان نے خشمگین نظروں سے راحت صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ راحت، وہ دل جمی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ دادا جان کو بھی اس کے انداز ایک نہیں بھاتے تھے، مگر ان کا دل اب بھی درد بخت میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اس سے قطع کلامی تو کر چکے تھے، مگر دل میں اس کے لیے ابھرتے جذبات کبھی مٹا نہ سکے۔ نہیں بابا جان، میں حرام خوری کرنے والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا جو بے پرواہ سا تھا، ہر چیز سے بے نیاز۔ نہ جانے اس قدر ٹھڈائی کیسے آ گئی تھی اس میں۔ ہاں، یہاں پر تو بڑے حلال خوری کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ مزے سے بولا اور ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ یکدم دھاڑے تھے، جبکہ ان کی دھاڑ کا اس پر 1 انچ بھی اثر نہیں ہوا۔ دادا جان نے گہرا سانس بھرا۔ باقی سب بھی ناشتہ چھوڑ کر انہی کی طرف متوجہ تھے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے، اس سے بہتر تھا خدا مجھے بے اولاد ہی رکھتا۔ انہوں نے اس کے سامنے سے ناشتے کی پلیٹ کھینچ لی۔ اس کا پرسکون انداز ان کے تن بدن کو سلکھا گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں فیس کر رہے تھے وہ اس کی وجہ سے؟ ریت کا ہاتھ تھم گیا۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے، جبکہ راحت صاحب کے الفاظ ماں کے دل پر پڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے راحت صاحب کو روکنا چاہا، جبکہ وہ بے دردی سے ان کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ اللہ کے سامنے رو رو کر بھلائی کی دعا مانگنے سے تھوڑا تمہارا بیٹا سدھر نہیں جائے گا؟ زانی، شرابی، عیبی، جواری، خیر سے وہ سب خصوصیات برخوردار میں کہ خدا بھی معاف نہ کرے۔ اس سے کہے دور رہے میری نظر سے، ورنہ قتل کر دوں گا اس کا میں۔ کہیں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، وہ بھی صرف ایک بے ضرر لڑکی کی وجہ سے، بزدل کہیں کا۔ وہ اپنی بھڑاس نکالتے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر ہال سے باہر نکل گئے۔ شگفتہ بیگم نے تعصب سے ان کی پیٹھ کو دیکھا۔ دادا جان بھی افسوس سے اپنے دل عزیز پوتے کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ باقی سب بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے لگے تو ناشتہ تو برباد ہو ہی چکا تھا، مگر چند ہی سیکنڈ میں سب نے دل دہلانے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا جو اپنا غصہ کانچ کی ڈائننگ ٹیبل پر بے دربے مکے برسا کر اتار رہا تھا۔ دریت، ماں تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ دادا جان نے بھی اس کو پکارا، مگر وہ تو جیسے بھیڑا بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر پھنس گئے تھے، خون سے سارا ہاتھ سرخ پڑ گیا تھا۔ مت کرو ایسا بخت میری جان، ماں نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ حیدر نے غصے سے اس کے خون کو نکلتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جسے وہ جھٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماروق بھاگ کر انکیسی کی طرف آئی، کہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ لے۔ اس کا پورا وجود ریت کو اپنے سامنے دیکھ کر کانپ اٹھا تھا، اور اوپر سے اس کا جنونی انداز۔ دل سہم سا گیا۔ اس نے جلدی سے انکیسی کا دروازہ بند کیا اور آپش کی طرف بڑھی، جو ملاج کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ آپش نے ماروق کو گھر کی طرف بھیجا تھا کہ وہ اب اگر یہاں آئی گئی ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے رہے، کیونکہ کل سے اب تک انہیں کسی بھی کام کے لیے نہیں بلوایا گیا تھا۔ تبھی آپش نے ماروق کو شگفتہ بیگم کے پاس بھیجا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو ان کی مدد کر سکے۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ اب تو ہر وقت دل میں دھگڑ بھگڑ لگی رہتی تھی۔ وہ وہاں، وہ میں ابھی، وہ ہے۔ ماروق بے رس سے بولنے لگی، جو آپش کو خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا ہے ماروق؟ ٹھیک سے بتاؤ، ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے۔
आपिश ने इसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ी दिया। आपिश आपिश, ये सैयद दुरैक बख्त का घर है। ये अल्लाह, हम कहाँ आ गए हैं? मैंने अभी अभी देखा इसे, इसके हाथ से खून, वो पागल है। आपिश की गिरफ्त इसके बाजू पे ढीली पड़ गई। मारो खुद भी खौफजदा सी इसको देखने लगी, जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। आपिश के वजूद में शदीद नफ़रत की लहर उठी थी। ये वो वाही शख्स था जिसने से आबिश शहरयार नफ़रत करती थी, शदीद नफ़रत। इसकी वजह से शहरयार इसकी ज़िंदगी से चला गया था। इसकी बद्दुआएं शहरयार को इससे छीन चुकी थी, मगर इसके नाम का खौफ, इस खौफ से कभी आज़ाद नहीं हो सकी थी। वो पीछे बिस्तर पर सर थाम कर बैठ गई। अगर नफ़रत को देखती तो एक लम्हे में इस शख्स से बहुत दूर चली जाती थी, और अपने बेटे को देखती तो इस वक्त पैसे की किल्लत और खुराक की कमी इसके बिलाज की जान भी ले सकती थी। और मारो कहाँ लेकर जाएगी वो इसे? इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। इसने जैसे बेदर्दी से अपने दिल की आबा को कुचला और आंखों से गिरते आंसू को गालों पर से रगड़ा। शहरयार की याद शिद्दत से आई थी। काश वो होता तो उसके साए में पुरसुकून सी रहती, मगर वो नहीं था। हकीकत यही थी। इसने मारू को देखा जो इसी इसी की तरफ देख रही थी। हमारा मतलब काम से होना चाहिए, इर्द गिर्द कौन है, क्या हो रहा, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम नहीं जाओगी, तुम इलाज को संभालो, वहाँ हम खुद जाएंगे। वो तमाम तर हिम्मतें मुजतमा करती हुई बोली। तुम मारो इसको देख कर रह गई। आपिश एक कमज़ोर लड़की थी, वो जानती थी। इस बात से आपिश खुद भी वाकिफ़ थी। दिन खामोशी से गुजरने लगे थे। तुरंत दोबारा घर नहीं आया था। इसके पिए से माँ को इसके बैंकॉक जाने की इत्तला मिल चुकी थी। इन्हें दुख भी हुआ था कि वो उनसे मिला बगैर चला गया, मगर इसके लिए खैर की दुआ करते रहे। वो इसे अपने रब के सुप्र्द कर चुकी थी। आप इस शगुफ्ता बेगम के पास अपने लिए काम मांगने आई तो उन्होंने इसे ऐसा काम सोचा कि वो किसी सूरत इस काम की हामी न भरती। वो खामोशी से इन्हें देखी गई। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अजीब काम सौंप रही हूँ, अपने जवान जहाँ, और कोई शक नहीं। अयाश बिगड़े बेटे की तमाम तर जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, मगर यकीन मानो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वो खुद से बेपनाह लापरवाह है, और मुझे तो क्या किसी भी मुलाजिम को अपने गिर्द भटकने नहीं देता। मगर मुझे यकीन है तुम एक सुलझी हुई लड़की हो, तुम इसकी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभा लोगी। लेकिन अगर तुम्हें इस काम में कोई भी दिक्कत है तो तुम इनकार कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो मुस्कुराई। वो आपिश के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहती थी। हम यहाँ काम करने आए और काम हमारी ज़रूरत है। इनका ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, इनकार का ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। आप जो काम कहेंगी वो पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। वो कड़े दिल से बेतासुर लहजे में कहती इनको खुश कर गई, जबकि वजूद की लरज़ाहट इसकी अंदरूनी हालत की चुगली कहा रही थी। थाईलैंड के मशहूर शहर बैंकॉक के सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल कार्टन में वो रिहाइश पसीर था। यहाँ की फ़िज़ा इसे हमेशा से पसंद थी। इसका शानदार और कीमती रूम होटल के टॉप फ्लोर पर था, जहाँ से वो बैंकॉक की खूबसूरती का आराम से मज़ा ले सकता था। इस वक्त भी टेरेस से वो नीचे भागती हुई दौड़ती गाड़ियों को, पैदल चलते मुसाफिरों और दूर तक फैली रोशनी को गहरी नज़रों से देख रहा था। हाथ में इसकी तलब का सामान था, शराब का एक एक घूंट, और बैंकॉक की दिलकश खूबसूरती इसे अंदर तक पुरसुकून कर रही थी। शायद इसके साथ ही आया था, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब था कि वह शाह को खींच कर अपने साथ लाया था। कल इसका शूट था बैंकॉक की मशहूर मॉडल के साथ। कल के दिन के बारे में सोच सोच कर इसे ही मज़ा आ रहा था। दिलकश मुस्कुराहट लबों पर ठहरी हुई थी। अब इसे लगने लगा था कि बैंकॉक इसकी महबूबा बन गई है, क्योंकि जब भी वो बैंकॉक की बाहों में होता तो हर गम, हर फिक्र, हर चीज़ से आज़ाद हो जाता था। इसकी खुशी शहर की फ़िज़ाओं से जुड़ गई थी, तभी अक्सर वो यहाँ पाया जाता था। हेलो मिस महविश, वो शानदार चाल चलता मेकअप रूम में आया, जहाँ वो शूट के लिए बिल्कुल रेडी थी, मगर चेहरा बिल्कुल बेतासुर और सपाट था। ये एक रोमांटिक शूट था, इस हिसाब से इसकी ड्रेसिंग की गई थी। जीन्स की ब्लैक पैंट और शॉर्ट ब्लैक शर्ट, और पर शॉर्ट गिल्ड सितारों से टंगी ब्लैक ओवरकोट में डल मेकअप और खुले बालों में वो गदब लग रही थी। जबकि थीम को मद्देनज़र रखते हुए दुल्हन बेगम वक्त की भी ड्रेसिंग ब्लैक थी, मगर इसकी ड्रेसिंग में सिर्फ ब्लैक पैंट और कोट था, और कोट के नीचे से झलकता इसका मजबूत जिस्म इसको शानदार दिखा रहा था। तुरंत के आने का रिस्पॉन्स लिए बगैर मैं भी जगह से उठी। अरे अरे, हमारा शूट इतनी दूरी पर तो नहीं होना जो आप एहतियात बरत रही हैं, कुछ प्रैक्टिस पहले ना कर ली जाए? वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ झुका के महविश 2 कदम दूर हुई। मिस्टर दुरुदबख्त, आप अपनी औकात में रहें, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तल्खी से कहते हुए पलट कर बाहर चली गई, जबकि इसने सर झटका। तुम्हारी औकात का भी अभी कुछ देर में अंदाज़ा हो जाएगा।
हाँ किधर हो साइम। शूट स्टार्ट हो गया था। डायरेक्टर ने इन्हें सेट की तरफ बुलाया, मगर वो वह जाने से पहले साइम से बात करने लगा। सर मैं बस पहुंचने वाला हूँ, साइम ने जवाब दिया। गुड, सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक होना चाहिए। इसने इसने जैसे इसे पावर करवाया। जी सर, आपके हुक्म के मुताबिक होगा। साइम का जवाब सुनकर मुस्कुराया और फिर चेहरे के तासुरात पल में बिल्कुल संजीदा हो गए। ये एक ब्लैक बेडरूम सेट था जहाँ डिम लाइट थी और इस डिम लाइट में महविश पहले से खड़ी थी। सर आप रेडी हैं? डॉक्टर के पूछने पर इसने इस्पात में सर हिलाया, जबकि एक नज़र सामने से आते साइम और शाह पर डाली थी। एक्शन बोलते इसने महविश की कमर में हाथ डाला और उसके बालों में चेहरा छुपा लिया, जबकि महविश ने इसकी गर्दन में अपने बाजू हाइल कर लिए। शूट के हिसाब से दोनों के तासुरात बदलने लगे थे। फिर इस तरह के मुख्तलिफ बोल्ड पोज में इनका शूट होने लगा, जबकि किसी वजूद जैसे आंधियों की जर्द में आ गया था। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सामने इसकी बेस्ट फ्रेंड की बाहों में इसकी बीवी है। वो इसकी वेश है, वो लड़की जिसे इसे दिलो जान से चाहा था, और जब वो इसके हर साथ एक अच्छी ऐशवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहता था तब वो अचानक गायब हो गई थी। वो कहाँ गई थी इसे मालूम नहीं था। इसने पिछले 2 सालों में पूरा पाकिस्तान छान मारा रहा था, मगर वो कहीं नहीं मिली थी। और फिर मोहब्बत की जगह गुस्सत और नफरत ने ले ली। इसे यकीन होने लगा था वो अपनी माँ जैसी है। इसकी माँ भी ऐसी भाग के गई थी, मगर आज इसको अपने सामने इस हुलिये में देखकर जैसे शाह 100 बार मरा था। दिल में कहीं छिपी मोहब्बत का आज खून हो गया था, दिमाग की रगें तन गई थी। इससे पहले सब कुछ इसके हाथ से निकलता वो दंदनाता हुआ इस जगह पर पहुंचा जहाँ दुरेता इसके गले में हाथ डाले कोई पोज बनवा रहा था। इसने गुस्से की शिद्दत से दुरेत के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। दुरेत इस पंच के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तभी पीछे जा गिरा, मगर टिडाई की इंतहाई लबों पे जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। विश आंखें फाड़े शाह को देख रही थी। दुख, दर्द, तकलीफ, नफरत, हकारत, क्या क्या नहीं था इसकी नज़रों में। चटाक 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 इसका हाथ विश पर उठा तो रुका नहीं, वो दूर फर्श पे जा गिरी। व्हाट द हेल। डायरेक्टर गुस्से से शाह को काबू करने पड़ा, जो विश का मुंह अपने बेतरबे पड़ने वाले थप्पड़ों से सुजा चुका था। कैमरामैन ने भी इसके फिरे हुए वजूद को अपनी गिरफ्त में करना चाहा, मगर वो किसी की काबू में नहीं आ रहा था। विश खामोशी से फर्श को घूर रही थी। कोई और भी था जो शाह के वजह को मगर गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो इसे। दुरेद ने इसको इन सब की गिरफ्त से आज़ाद कराया, मगर शाह ने दुरेद के मुंह पर फिर से एक जोरदार पंच रसीद किया। कमीने, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। इससे पहले कि वो एक और पंच मारता, दुरेद ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। जिगर, बस तेरी प्रॉपर्टी को छूने की सज़ा, इतनी सज़ा काफ़ी है। ये मैंने खुद से मुंतखब की हुई थी, वरना तू कहाँ मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर मार सकता है। क्यों किया तूने ऐसा? शाह से पीछे धक्का देता हुआ दहाड़ा था। अबे बीवी, तेरे से नहीं संभली, बकवास तू मुझसे कर रहा। खैर, तुझे इससे मिलवाने का मेरा अपना अंदाज था, अब तू जाने और तेरा काम। वो मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाकर साइम की तरफ बढ़ा, जो फर्स्ट एग बॉक्स लिए खड़ा था। ये न्यूज़ नहीं बननी चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज़ टीवी पर नशर होती तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। बाकी तुम्हारा शूट हो जाएगा, इस बार मॉडल में खुद ले आऊँगा। साइम इसके लबों से निकलते खून को साफ कर रहा था, जबकि धूल डायरेक्टर को वार्न करता वहाँ से निकल गया। शाह ने विश के बेजान फर्श पे पड़े वजूद को एक झटके से उठाया और उसका बाजू थाम कर वो भी बाहर वहाँ से निकल गया, जबकि विश को इसकी गिरफ्त में अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ। शाह ने इसके वजूद को ज़बरदस्ती कमरे में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। खोले दरवाज़ा। वो बामुश्किल गले में अटकते आंसू को बाहर निकलने से रोकती बोली। इतने अरसे बाद इसे अपनी आंखों के सामने देख कर दिल बरसता हो रही थी, जबकि शाह का दिमाग गुस्से से खौल ही गया। कितनी गंदी हो तुम, और कितना गंदा गंद भरा है तुम्हारे इस दिमाग में। मुझे अफसोस है मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की। तुम निकली इसी तवाइफ की बेटी, बिल्कुल इसी की जैसी। वो भी शौहर छोड़कर भागी थी, तुमने भी इस गम को अपनाने के लिए मुझे छोड़ा। नफ़रत हो रही है मुझे आज इस जज्बे से जो हमेशा तुम्हारी हमायत में चीखता रहा, जिसने मेरे दिल पर पकड़ रखी थी, जिसने मेरे दिल से आज तक तुम्हारे नाम की मोहब्बत निकलने नहीं दी। लानत है मुझ जैसे आदमी पर, लानत है। शायद इसकी
तलाई मरोड़ते हुए गुस्से से फटकार रहा था, जबकि विश आंखों में सुर्ख टोने इसके लफ्ज़ों के तीर बर्दाश्त कर रही थी। जाने दे मुझे, वो बस इतना ही बोली कि शाह ने इसको झटके से खुद से दूर कर दिया। हाँ चली जाओ बहुत दूर, मगर जाते जाते मुकम्मल आज़ाद हो जाओ कि आगे तुम्हें कोई कदम उठाने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। मैं तुम्हें तलाक देकर इस नाम नेहाल रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं जोड़ना। अगर ये नाम जो जुड़ा रहा तो तुम कहीं नहीं जा सकोगी। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि तुम्हें बेगैरती के लिए खुले आम छोड़ दूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम थम गए थे। वो अपनी जगह मुंजमद होकर रह गई थी। कैसी मोहब्बत थी इस शख्स की, कुछ भी जाने बगैर ही बस फैसले सुना रही थी। न कुछ समझा, न कुछ सुना, न जानने की कोशिश की इसके अंदर क्या चल रहा था। वो कितनी तकलीफ में थी, कितनी अजियतों में तड़प तड़प कर इसने वक्त गुजारा। आज वो मिला भी तो गैरत के लिए इसे छोड़ देना चाहता था। इसका दिल किया फूट फूट कर रोती अपनी किस्मत पर, अपने होने पर। वो पलटी थी, ज़ख्मी नज़रों से इस सितमगर को देखा जो इसकी तरफ देख रहा था, और फिर न जाने इसे क्या हुआ था। इसने झपट कर शाह का गिरबान अपनी मुट्ठियों की गिरफ्त में ले लिया। तलाक दोगे मुझे? तलाक देकर आज़ाद करना चाहते हो? तुम्हारी गैरत को गवारा नहीं कि तुम्हारा नाम वो जैसी गंदी के साथ जुड़े? तो ज़रा ये बताओ कि मिस्टर शहराम, इस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ जा मरी थी? जब तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवी को लोग उठा कर लेकर गए थे, कहाँ चले गए थे तुम? इस वक्त कहाँ चले गए थे तुम जब वो लोग मेरे बच्चे को मार रहे थे? कहाँ चले गए थे जब तुम्हें चीख कर मैं दिन रात पुकारती रही, मगर तुमने मेरी एक पुकार नहीं सुनी? कहाँ थे तुम जब मुझे ज़बरदस्ती तुमसे जुदा किया जा रहा था? तुम जानते थे मेरी माँ क्या है? तुम नहीं, मेरा बाप भी जानता है था, फिर भी मुझे इसके हवाले कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया, मत जाओ शाह, मुझे छोड़कर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर तुम गए। तुम्हें तुम्हारी बीवी से ज़्यादा अजीज तुम्हारा कारोबार था, तुम मुझे छोड़ गए। मैं एक बार फिर इन अनचाही औरत की कैद में आ गई। इसने मेरा बच्चा मार दिया। मैंने तुम्हें कितना पुकारा, मगर नहीं। तुम्हें मोहब्बत होती तो मेरी पुकार, मेरा दर्द सुनाई देता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, कभी नहीं थी। मोहब्बत होती तो तुम कभी मेरी ढूंढ पड़ताल बंद ना करते। मैं हर दिन तुम्हारे आने की आस में गुजरता रहा, मगर तुम ना आए, और जब मिले तो तुम्हारी गैरत जाग उठी। वाह क्या शानदार मर्द हो तुम। ठीक है तो दो तलाक तो कर दो आज़ाद। वैसे भी मैं ज़िंदगी जी नहीं रही, ज़िंदगी मुझे जी रही है, और जब इसका दिल करेगा ये सांसें भी वजह से नाता तोड़ लेंगी। मगर तुम मेरे गंदे नाम से आज़ाद हो जाओगे तो तुम तलाक। वो उसको झटके से खुद से परे धकेलती, दोनों हाथ सीने में बांधकर इसकी सूरत तकने लगी, जो इंकशाफ पर दंग सा था। पेशानी अर्क आलू थी, चेहरे के रंग फीके पड़ गए थे। इसका बच्चा, वो बाप बनने वाला था। इसका दिल तड़पा था। इसने तो ये सोचा भी नहीं था। वो औरत, वो उसको कैसे भूल सकता था? वो कैसे इस बात को नज़रअंदाज कर गया कि वो औरत विश के अचानक हॉस्टल से गायब होने पर कैसे सुकून से बैठ सकती थी? 2 साल पहले के मनाजिर इसकी निगाहों में घूम गए। खूबसूरत मिलन के बाद ज़िंदगी जैसे पुरसुकून हो गई थी। विश का इससे घबराना, बात बात पर शर्माना, खालिसन बीवी वाले अंदाज शाह को इसकी मोहब्बत में मज़ीद चोर कर चुके थे। विश के अलावा जैसे कुछ दिखाई नहीं देता था, और फिर हर बार इसके बढ़ते कदमों को विश का न रोकना शाह के दिल में इस बात को मजबूत कर गया कि वो भी इसको चाहने लगी है, वो भी इसके साथ रहना चाहती है। वो दिलो जान से इस पर फिदा रहने लगा था। बस एक मुश्किल थी जिसे वो पार कर देना चाहता था। विश को चाचू से मिलवाना चाहता था, मगर अभी विश इसके लिए आमदा नहीं थी। मगर वो मिलवाएगा, इस बात का अज़म वो दिल में कर चुका था। दिन एक दूसरे की संगत में और हसीन हो चुके थे। वक्त भी दबे पाँव अपनी चाल चल रहा था, मगर इस चाल से दोनों ही अनजान थे। फिर इसे डेस्टिनेशन के लिए कराची जाना पड़ा। और जब ये ख़बर इसने विश को नाश्ते की टेबल पर दी तो इसका मुंह ही बन गया। पहली तबीयत अजीब ढीली ढीली सी रहने लगी थी, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। अभी वो अपनी तबीयत से इसको आगाह करती कि वो इससे दूर जाने की बात कर रहा था। शायद के मुंह बनाने पर खुलकर मुस्कुराया। यार 2 दिन की बात है बस, और इस 2 दिन में 48 घंटे होंगे, और न जाने कितने सेकंड, पल या लम्हे। वो शिकायत की नज़रों से इसे घूरने लगी, जबकि शाह को इस पर बेपनाह प्यार आया। अब ऐसे मुंह बनाकर मुझे रोमांस पर मत उकसाओ, और मुस्कुराकर मुझे सी ऑफ करो। इसने टेबल पर रखे इसके सफ़ेद मोमी हाथ को लबों से छुआ, जबकि मुकाबिल इसके ज़रा से लब से जैसे छुई मुई हो गई थी। शाह, मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो रो देने को थी। ओहो, कुछ गलत नहीं हो रहा, अब तो सब ठीक हो रहा है। यू नो वी आर बोथ ऑन द राइट ट्रैक टू लव, नो प्रॉब्लम नाउ, आई एम श्योर।
وہ یقین سے بولتا اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا تھا، جبکہ واپسی پر ایک قیامت اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس کی وجہ سے اسے لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملی تھی۔ شاہ کے جانے کے بعد وہ یونیورسٹی کو ڈرائیو کر کے جانے لگی تھی۔ اس کی محبت میں وہ اپنی ماضی سے بالکل انجان ہو گئی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد دل آپ ہی آپ خوفزدہ رہنے لگا، جیسے اس کا مضبوط تحفظ اس کے گرد سے ہٹ گر رہا ہو، مگر اپنا وہم سمجھ کر اس نے ٹال دیا۔ 2 دن بامشکل گزرے تھے، جبکہ اگلے دن شاہ نے شام میں آنا تھا۔ فون پر اس کے آنے کی خبر سن کر وہ جھوم سی گئی۔ ہاں، اب اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، بے پناہ محبت۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں بھاگی تو زور سے چکر آنے پر دروازے کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ وجود ایک دم سرتا ہو گیا تھا، مگر اپنی طبیعت سے انجان وہ اس کی آمد پر خوش ہوتی اٹھی۔ وہ کمرے میں تیار ہونے کے لیے بند ہو گئی۔ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی باہر نکلی۔ پہلی بار وہ اس کے لیے اس کے انداز میں تیار ہوئی تھی، بلیک کلر کے شارٹ فراک اور گولڈن کیپری پر بڑا سا کامدار دوپٹہ لیے وہ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اس کے انتظار کی گھڑیاں گزارنے لگی، اور جب انتظار بڑھنے لگا تو اصلی غصہ بھی بڑھنے لگا تھا، اور وہ غصے سے اپنے موبائل کی تلاش میں اٹھی جو کہ کمرے میں تھا۔ تبھی مین ڈور بیل بجی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ کیا ری ایکشن دے گا اس کو دیکھ کر سوچ کر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ دل کی اتھل پتھل ہوتی کیفیت کو قابو کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازے میں آئندہ وجود دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ 2 قدم دور ہوئی تھی۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگی تھیں۔ میری پیاری بیٹی، ہواؤں میں اڑ لی ہو تو زمین کی سیر کرنے چلو گی اپنی ماں کے ساتھ؟ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، شاہ کے آنے کی دعا مانگتی وہ پلٹ کر کمرے میں بھاگتی، اس سے پہلے اس کو اس کی ماں کے چمچے نے تھام لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی۔ وقت پر بھی نظر ڈالی، اسے آنا تھا وہ آئے گا۔ آنٹی، بہت اس کا ڈرامہ برداشت کر لیا، اب میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ میرے کروڑوں کی ڈیلنگ پر لات مار کر یہ پاکستان بھاگ کر آئی تھی، مگر اب مجید نے، میں اور یہ آج رات کی فلائٹ سے تھائی لینڈ جا رہے ہیں۔ معظم اس پر گرفت مضبوط کرتا غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نقصان تو اس نے بہت کیا ہے ہمارا، لے جاؤ تم، میں بھی 2 3 دن تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنے بارے میں فیصلہ سن کر حواس بختہ ہو رہی تھی۔ اپنی ماں سے تو اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ عورت کسی قسم کی رعایت کرے گی، مگر پھر بھی وہ ایک آخری امید کے لیے تحت بولی تھی، پلیز مما مجھے چھوڑ دیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، شادی شدہ ہوں میں، بابا کے ساتھ رہنا ہے مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ استحائی مسکرائے، میری جان سونے کی چڑیا ہو تم میرے لیے، چلو شاباش، ہلکا نہ ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میری بیٹی ہو تم، میں جانتی ہوں تم اپنی خوبصورتی سے مجھے ڈبل کما کر دو گی۔ انہوں نے پیار سے پچکارا، جبکہ وش زور سے چیخی تھی، لعنت ہے آپ پر اور میرے باپ پر بھی جس نے آپ سے شادی کی۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، مزید یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے معظم کو سر کے اشارے سے لے جانے کو کہا تو وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے جانے لگا، جبکہ وش کی چیخیں اور شاہ کے نام کی پکار بڑھتی چلی گئی۔ منہ بند کرو اپنا۔ اس سے پہلے کہ آس پاس کے لوگ متوجہ ہوتے، معظم نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، جس پر بس ایک لمحے کے لیے شاہ کی پکار تھمی تھی اور پھر وش نے اسے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اف! معظم نے اس کے تڑپتے وجود کو قابو کیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر گھر سے باہر لے آیا۔ رات کا وقت تھا، سوسائٹی تقریباً سنسان تھی۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے گاڑی میں پھینکا۔ وش منہ کے بل سیٹ پہ گری تھی، مگر ہاتھ پاؤں چلا کر وہ باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر معظم نے جلدی گاڑی لاک کر کے آگے بڑھائی اور ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی۔ کھولو دروازہ شاہ! وہ معظم پر مکے برساتی پھر سے چیخی، جبکہ معظم نے گاڑی روک کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ بھولا نہیں ہوں میں اپنا نقصان، اپنی ماں کی وجہ سے زیادہ ہی سر چڑھ گئی ہے، بدذات کہیں کی۔ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود پہ ایک نفرت بھری نظر ڈال کر اس نے دوبارہ گاڑی آگے بڑھائی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ کو پکارتے پکارتے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، مگر دل میں اٹھتی پکار اب بھی نہیں رکی تھی، جبکہ پیچھے شاہ کے گھر سے تمام قیمتی چیزیں اور نقدین لے کر اس کی ماں بھی فرار ہو گئی تھی۔
शी इज़ प्रेग्नेंट। बैंकॉक के हॉस्पिटल में पड़े इसके बेहोश वजूद को देखकर डॉक्टर ने कहा, जबकि मुअज्जम और उसकी माँ का पारा हाई हो गया। हमें नहीं रखना ये बच्चा। इसकी माँ ने सफाकियत की इंतहा कर दी थी। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए, जैसे इसके इनके रखने ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ अक्सर लड़कियाँ यही काम करवाने आती थी। चंद ही घंटों में इसके वजह से इसके बच्चे को निकाल कर फेंका गया था। डॉक्टर को स्ट्रिक्टली मुअज़्ज़म ने विश को बताने से मना किया था, मगर जब इसे होश आया तो दिल की धड़कनें मामूल पर आ ही नहीं रही थी। इस वक्त सिर्फ एक ही नर्स थी। इसने उठना चाहा, मगर वजूद में तकलीफ सी उठी। आप लेटी रहें। नर्स अंग्रेज़ी लहजों में बोली। मुझे मुझे जाना है यहाँ से, वो काँपती आवाज़ में बोली। देखिए, अभी आपका उठना ठीक नहीं, आप बेड रेस्ट करें। वो दोबारा से इसे टोकती बोली, क्यों? जाने दे मुझे यहाँ से। वो गुस्से से बोली तो नर्स को भी गुस्सा आ गया। हम पहले गुनाह कर लेते हैं, फिर ड्रामे करते हैं। अभी अबॉर्शन हुआ है तुम्हारा, लेटी रहो, वरना अपनी जान की जिम्मेदार खुद हो। वो गुस्से से कहती बाहर चली गई, जबकि विश को लगा जैसे किसी ने बहुत ऊंचाइयों से इसे ज़मीन पर ला पटका हो। इसकी हालत गैर होने लगी थी। इसने अपने बाल नोच लिए। शाह एक बार फिर इसको पुकारा, मगर इसने फिर इसकी पुकार नहीं सुनी थी। डॉक्टर्स ने जल्दी इसकी हालत पे काबू पा लिया था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मगर जब महीनों गुजरने के बाद भी इसकी हालत नहीं संभली तो मुअज़्ज़म की धमकी ने जैसे इसे तोड़ दिया। अगर तुमने वो नहीं जानू, फिर हम चाहते तो मैं तुम्हारे शाह को मरवा दूंगा, और नो डाउट ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। धमकी कारीगर साबित हुई और फिर विश कठपुतली की तरह इनके इशारों पर चलने लगी।